डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लक्ष्य नौकरी बैच में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टैंक्स। हम पढ़ने आए थे गेट फर्स्ट की इंग्लिश पेपर 2 का पूरा कोर्स पढ़ने जा रहे हैं हम। तक्ष पब्लिकेशन की किताब है जो कि BK रस्तोगी सर ने लिखी है। इसमें हमने आर्टिकल पढ़ लिए थे एन दा वाले, कहाँ यूज़ करना कहाँ यूज़ नहीं करना, विद क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और आगे कौन से क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं हमने वो भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं टेंस। तो टेंस में हम देखते हैं टेंस माने काल होता है। इसको थोड़ा लाज करता हूँ मैं जी। टेंस काल टेंस, द वर्ड टेंस इज ए टर्म ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड refers to a form of the verb that indicates time. Tenses mean different forms of a verb showing different times and aspects. Thus, a tense indicates the time of an action and a degree of its completion. In non-action verb, it suggests only time. He is a doctor. They are students. The time indicated by a verb form may be present, past and future, and the aspects simple, continuous and perfect. However, tense and time are two separate things in English. For instance, a verb in the present tense may indicate future time in following sentence. He is going to Jaipur tomorrow. Present continuous tense but future time. The train leaves at 6:30. Present simple tense but future time. टेंस क्रिया के वे विभिन्न रूप हैं जिनसे विभिन्न समय दर्शाए जाते हैं। वर्तमान, भूत एवं भविष्यकाल तथा जिसमें गतिविधियों का निरंतर या पूर्णता का बोध होता है। अंग्रेजी में काल टेंस एवं समय टाइम दो अलग अवधारणा है। उदाहरण के रूप में वर्तमान की क्रिया भविष्य के समय का संकेत दे सकती है। Scientifically speaking, English verbs have only two tense forms, past and present, and what is traditionally called future tense is expressed with shall, will and the root first form of the verb. Example: he will go, I shall attend the meeting, you will meet him tomorrow. सामान्यतः अंग्रेजी वर्ब की प्रेजेंट और पास्ट दो ही टेंस फॉर्म होते हैं तथा फ्यूचर के कार्यों और घटनाओं के लिए शैल विल के साथ क्रिया की पहली मूल फॉर्म आती है। आस्पेक्ट, द टर्म आस्पेक्ट stand for indicates the relationship between an activity and the passage of time. This relationship may be either of completion or of continuation duration. Here are examples of two aspects. I have done my work. Perfect answer.
I have read the book. Perfect aspect. I am doing my work. I was reading the book. Continuous aspect. अंग्रेजी क्रिया के दो एस्पेक्ट पक्ष होते हैं, कंटिन्यूअस निरंतरता बोधक तथा परफेक्ट पूर्णता बोधक। कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में सहायक क्रिया बी का कोई रूप एजेमार वाजबर तथा मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग होती है, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक। परफेक्ट एस्पेक्ट में सहायक क्रिया हैव का कोई रूप हैव हैड का तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म पार्ट पार्टिसिपल होती है, जैसे आई हैव डन माई वर्क। Verb form and their use. The following forms of the main verb are used in formation of tense. विभिन्न टेंसेस की रचना में मुख्य क्रिया के निम्नलिखित रूप प्रयुक्त होते हैं। पीएन सिंपल फॉर्म फर्स्ट टेंस गो और गोज, पास्ट सिंपल फॉर्म सेकंड फॉर्म वेंट, पार्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म गोन, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म गोइंग। विभिन्न टेंस की रचना में मुख्य क्रिया के निम्नलिखित रूप प्रयुक्त होते हैं। प्रेजेंट सिंपल फॉर्म फर्स्ट फॉर्म गो और गोज, पास्ट सिंपल फॉर्म सेकंड फॉर्म वेंट, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म गोन, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म गोइंग। Tense structure and uses. Present tense present simple. Verb form auxiliary verb not used in affirmative sentence. Main verb first form present s or es added to the first form in the third personal singular. I play but he plays. I write but Rita writes. Present simple form of the verb or be is am are is used in this sentence. Example: I am a lecturer. Raju is an officer. They are students. Nature of actions repetitive. Action data repetitive in nature for any reason, such as habits, universality, profession, etc. are expressed in this sentence. The time content is general, present. The construction of sentence is as follows: subject plus verb plus object plus adverb of frequency. Christians go to the church every Sunday. Christians go to the church every Sunday. Subject plus verb plus SAES plus object a complement plus adverb of frequency. See, he reads novels daily. Mohan plays football. Subject plus AMR plus adjective. I am a teacher. They are honest.
Uses. It is used to express universal, eternal truth, general truth, scientific fact, habitual action, and permanent status. The states permanent states the sun rises in the east, universal truth. Two and two make four, general truth. Water freezes at 0 degree centigrade, scientific facts. He smokes daily, habitual facts. My house faces east, permanent state. Repent repeated activity with time adverbial like always, generally, often, usually, never, sometimes, daily, every day, once a week. He is always late. He goes to cinema 1 week. He never drinks. Do you often go to work? Fixed program, schedules and रेगुलर एक्टिविटीज़, निश्चित कार्यक्रम, सारणियों और नियमित गतिविधियों के लिए. आवर ऑफिस फंक्शन फ्रॉम 10 to 5. The first train for Jaipur leaves at 3 a.m. Timetable future event. He goes to school daily. A planned future event expected to take place according to a fixed official timetable used with a future time adverbial like tomorrow, next week, etc. पूर्व नियोजित भविष्य के कार्य के लिए इसका प्रयोग होता है. द प्राइम मिनिस्टर अराइव इन जयपुर टुमारो. Newspaper headline to make some news sensational. समाचार पत्रों के शीर्षकों में द एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन, एक्सट्रीमिस्ट स्ट्राइक अगेन इन पंजाब, रनिंग commentaries on matches, public functions, etc. Running commentaries on matches, public functions, etc. खेलों और उत्सवों का आंखों देखा हाल प्रसारित करने के लिए विजय अमृतराज, 20 मुखर्जी, गावस्कर hits the ball over the fence. In conditional sentences and temporary clause, समय का बोध कराने वाले उपवाक्यों, शर्त वाले वाक्यों में I shall bring you a pen if I go to Jaipur. Wait till I am ready. I will stay here until he come back. Proverbial saying and कोटेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं. कहावतें और उदाहरण के लिए प्रयोग होता है.
Man is mortal. Gita says that soul is immortal. Time and tide wait for none. Present continuous. Verb form. Auxiliary verb. HMR. Main verb. ING form. Present participle. He is reading a book. I am writing a book. हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस में एस और ई एस प्रेजेंट टेंस में हुआ था, सिंपल टेंस में एस और ई एस का उपयोग किया था। इसमें हम आई इज एम आर और आई एन जी फॉर्म का उपयोग करेंगे हम। ही इज रीडिंग बुक, आई एम राइटिंग ए बुक। यूजेस expresses an action going on or continuing at the time of speaking. The children are playing now. We are learning English now. यह काल टेंस वास्तविक वर्तमान ईयर प्रेजेंट का बोध कराता है और ऐसे कार्यों के लिए प्रयोग होता है जो बोलने के समय चल रहा हो। इसमें कार्य शुरू होने का समय नहीं दिया होता। एक्सप्रेसेस एन एक्शन continuing intermittently but not necessarily at the time of speaking. She is knitting a sweater for her brother. I am writing a book on Shakespeare. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए भी किया जाता है जो रुक रुक कर चलता है और आवश्यक नहीं कि बोलने के समय चल रहा हो। She is knitting a sweater for her brother, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वह बोलने के समय भी बुन रही हो। एक्सप्रेस नियर फ्यूचर प्रोग्राम express near future program, especially with verbs noting movement. We are going to Mumbai tomorrow. What are you doing tonight? निकट भविष्य में होने वाली सुनियोजित पहले से निश्चित कार्यों के लिए गति बताने वाली क्रियाओं के साथ इस काल टेंस का प्रयोग होता है। एक्सप्रेस डेवलपमेंट एंड चेंजिंग। He is putting on weight these days. House prices are going up again. Note the adverb now, at this moment, at present still are often used in this sentence. The verb now, at this moment, at present still are often used in this sentence. The present continuous is used with always for unpresent activity. always के साथ इसका प्रयोग पसंद न आने वाली अनप्रेजेंट गतिविधियों के लिए होता है। He always teasing me. Verbs not used in the possessive tenses. There are some verbs which cannot be used with the possessive tenses at all because the notion of something in progress cannot be applied to them. These verbs of three kinds. Verb of perceiving
फील, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट। इंद्रिय बोध की क्रियाएं कंटिन्यूस में प्रयोग नहीं होती। फील, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट। आई हियर ए नॉइज आउटसाइड, नॉट आई एम हियरिंग। फील करते हो चमड़ी से, आप फील करती हो, सुनते हो कानों से, आँखों से देखती हो, स्मेल करते हो नाक से, टेस्ट करते हो जीभ से, फील करती हो स्किन से। तो ये सब चीज़ें हमारी जो परसीव होती हैं, ये सब चीज़ें हमारी कंटिन्यूस टेंस में नहीं आती। ये कह रहा है। दिस मैंगो tastes sweet, not this mango is tasting. I can see someone through the window, not I am seeing. Verb referring to a state of mind or feeling. Believe, जो माइंड और फीलिंग की बातें वो भी इसके अंदर नहीं आती, कंटिन्यूस टेंस में नहीं आती। बिलीव, डिजायर, डिसलाइक करना, लाइक करना, ये सब चीज़ें। डाउट, फॉरगेट, हेट, होप, इमेजिन, न्यू, लाइक, लव, मीन, प्रिफर, रिमेंबर, सपोज, अंडरस्टैंड, वांट, विश, एक्सेट्रा। मानसिक स्थिति या भावना को व्यक्त करने वाली क्रियाएं कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं होती। मानसिक स्थिति या भावना को व्यक्त करने वाली क्रियाएं हैं वो कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं होती। आई फॉरगेट हिज नेम, नॉट आई एम फॉरगेटिंग। ही अपीयर्स टू बी रिच, नॉट ही इज अपीयरिंग। I like my neighbor, not I am liking. I remember you, not I am remembering. See verbs referring to relationship or a state of being. Be, belong to, concern, consist of, contain, cost, depend on, deserve, fit, have, matter, owe, on, possess, remain, require, assemble, etc. संबंध और अस्तित्व बोधी क्रियाएं कंटिन्यूस में नहीं आती। से बिलोंग करता है, कंकर्न है, कंसिस्ट है, कंटेन है, कॉस्ट है, डिपेंड है, रिजर्व है, फिट है, हैव है, मैटर है, ओ है, ओन है, पॉसेस है, रिमेन है, रिक्वायर है, रिजेंबल है। मैटर हुए, ऑन हुए खुद की क्रियाएं, बिलोंग से हुई, रिलेशनशिप और स्टेट वाली क्रियाएं इसमें नहीं आती। अस्तित्व बोध और संबंध वाली क्रियाएं। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, नॉट इज बिलोंगिंग टू मी। दिव्या resembles her mother, not is resembling. Raju and Rita have a car, not is having a car. Mahesh has a good wife, so is not is having a good wife. Note this non-progressive verb are used with the progressive tenses in special circumstances. These non-progressive verbs are used with the progressive tenses in special circumstances. अब पढ़ते हैं थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, वर्ब फॉर्म, ऑक्सिलरी वर्ब हैव, हैज, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म में। आई हैव रिटन 2 लेटर, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। आई हैव नेवर सीन आगरा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, हैव के साथ सीन भी थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये हमेशा इसका वो है प्रेजेंट परफेक्ट की ये स्ट्रक्चर है। इट
It expresses an action completed recently but the result of which is still prevalent. Example: I have shifted to Jaipur. I live there now. I have lost my exercise book. I am therefore unable to do my homework. प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग भूतकाल में घटित ऐसी घटना के लिए होता है जो किसी प्रकार से वर्तमान से संबंधित हो। जैसे पहले वाक्य में वक्ता बोलने के समय से पहले जयपुर में जा चुका है पर अब भी वहीं रहता है, इसलिए भूतकाली घटना वर्तमान से संबंधित है। इट expresses an action beginning at some point in the past and continuing to the present. In this case, since is used for point of time, for is used for duration of time. Example: we have lived here for 10 years. I have known him since 1990. जब कोई कार्य भूतकाल से वर्तमान समय तक जारी रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है। इस स्थिति में सिंस व फॉर का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग समय के बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए और फॉर का प्रयोग समय की अवधि या पीरियड और या ड्यूरेशन को बताने के लिए होता है। इट आल्सो यूज फॉर एन एक्शन और एक्सपीरियंस विच टुक प्लेस इन द पास्ट, बट दिस एक्शन और एक्सपीरियंस इज सिग्निफिकेंट एट द प्रेजेंट मोमेंट। आई हैव सीन आगरा ट्वाइस. I have never met him before. I have seen many temples. ऐसे विगत कार्य का या अनुभव के लिए भी हम काल का प्रयोग होता है जो भूतकाल में हुआ हो पर वर्तमान में महत्वपूर्ण हो। द एडवर्ब just, yet, ever, never, already, recently, lately, for, since are used in this sentence. He has just finished his work. ऊपर दिए हुए समय को बताने वाली क्रिया विशेषण टाइम एडवर्ब सहायक क्रिया के बाद और मुख्य क्रिया के पहले आते हैं। ऊपर के वाक्य में हैज सहायक क्रिया, फिनिश मुख्य क्रिया है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि जस्ट है वो मुख्य क्रिया के पहले है, सिंस मुख्य क्रिया है और सहायक क्रिया हैव है इसके बाद में आया है। इट इज यूज्ड फॉर स्टेट लीडिंग अप टू प्रेजेंट टाइम। हैव यू सीन मुंबई? इट इज यूज्ड फॉर हैबिट इन ए पीरियड लीडिंग अप टू द प्रेजेंट टाइम। He attend lectures regularly. It is used for past event with result in present time. The taxi has arrived. It is now here. I have lost my pen. It is still unfound.
It is used for recent indefinite past. Have you eaten? Have you taken bath? आप पढ़ते हैं एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं. Auxiliary verb has, have or been. Main verb ing form present participle. Adverb used since for. I have been teaching English since 1992. He has been reading for 3 hours. It is used for an action or activity which began in the past, is continuing at a time of speaking and is likely to continue further, and the time of the beginning of action is given. इस जो ये जो काल है, ये जो तुम्हारा टेंस है, इसका प्रयोग होता है जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और बोलने के समय चल रहा हो और भविष्य में चलने की संभावना हो तथा कार्य के शुरू होने का समय भी दिया गया हो. जैसे यहाँ देख सकते हैं शुरू होने का समय दिया गया 1992. मतलब ये कार्य मतलब ये सारा शुरू हो चुका है, शुरू हो गया है और बोल रहे हैं तब भी ये कार्य चल रहा है, अभी वो पढ़ा रहा है. मतलब अब यहाँ देखते हैं He has been living in Jaipur for 10 years. जो पीरियड ऑफ टाइम देखो यहाँ टाइम दिया हुआ है कार्य शुरू होने का, तो कार्य पहले शुरू हो चुका है और वर्तमान में चल रहा है कार्य और भविष्य में चलने की संभावना है. मतलब रहने की संभावना जयपुर में रहेगा वो. मिस्टर अमन हैज़ बीन टीचिंग हियर सिंस 1995. इस काल का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में शुरू हुआ हो, बोलने के समय चल रहा हो, भविष्य में चलने की संभावना हो तथा कार्य के शुरू होने का समय दिया गया हो. वाक्य बी में 1995 में प्रारंभ हुआ कार्य अब चल रहा है और आगे चलने की संभावना है. समय के लिए सेंस फॉर का प्रयोग होता है. और पढ़ते हैं पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल. ऑक्सिलरी वर्ब होता है नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस. मेन वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में आती है. पास्ट टेंस ऑफ बी इज वाज वर्ब इज यूज्ड एज मेन वर्ब इन सम सेंटेंस. ही वाज ए टीचर. ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे. He killed a snake. Uses. It is used for activities or events which took place in the past are not connected with the present. इसका प्रयोग भूतकाल में घटित उन घटनाओं के लिए होता है जिनका वर्तमान में कोई संभव न हो. इस काल में प्रायः भूतकालिक समयबोधक क्रिया विशेषण, पास्ट टाइम एडवर्ब, यस्टरडे, लास्ट नाइट, एगो आदि का प्रयोग होता है. वी वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे. रमन lived in Jaipur for 8 years. मतलब ये घटनाएं भूतकाल में हुई हैं, इसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है. इसका माने रमन जयपुर में रहा था, वो रहा था भूतकाल में, वर्तमान में कोई इसका संबंध नहीं वर्तमान से. वो सिनेमा कल गया था, आज का वो पता नहीं आज जाएगा गया है कि नहीं गया, पर वो कल सिनेमा गया था. और ऐसे ही अब देखते हैं इट इज यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट.
भूतकाल के आयतन कार्यों के लिए इसका प्रयोग होता है। ही वेंट टू द पिक्चर्स एवरी संडे। ही स्मोक डेली वेन इन मुंबई। ये आयतन कार्य है, वे रोज स्मोक करता था, रोज का, जब बॉम्बे में था। ही वेंट टू द पिक्चर एवरी संडे, वो हर रविवार को पिक्चर देखने जाता था। भूतकाल हर रविवार को जाता था, वो उसका आयतन कार्य था जाना। वर्तमान से इसका कोई संबंध नहीं, पर काल ने भूतकाल का था। भूतकाल की क्रियाओं को बता रहा है ये। इट इज यूज फॉर हिस्टोरिकल इवेंट, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। इसका प्रयोग ऐतिहासिक घटनाओं, खोज एवं आविष्कारों के लिए होता है। बाबर इन्वेडेड इंडिया। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। एडवर्ड जेनर इन्वेंटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। इसका प्रयोग ऐतिहासिक घटनाओं, खोजों और आविष्कारों के लिए होता है। बाबर इन्वेडेड इंडिया। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492. Edward Jenner invented the smallpox vaccine. It expresses certain condition and supposition. It is a condition that which the speaker thinks unlikely to be fulfilled, or a condition which is contrary to fact. If I were a bird, I would fly. इसका प्रयोग भूतकाल में शर्त वाले वाक्यों के लिए किया जाता है। यह शर्त प्रायः पूरी होने वाली नहीं होती। जैसा, यदि मैं पक्षी होता तो उड़ता। इस वाक्य में पक्षी होना संभव नहीं है। मतलब ये को जो चीज़ संभव नहीं है, तो सुपरपोजिशन चीज़ है, एकदम सुपरमैन वाली बात कि वो हो नहीं सकता। तो अगर वो मैं सुपरमैन होता तो मैं उड़ता, तो ये जो पॉसिबल है ही नहीं है। वो पक्षी होता तो वो उड़ता, ना वो पक्षी होगा ना वो उड़ेगा। इट इज यूज विद सर्टेन फ्रेजेस टू इंडिकेट डिजायरेबल। और डिजायरेबल और इमीडिएटली सिचुएशन। द फ्रेजेस आर आई wish I'd rather, if only, as if, as though, suppose, it is time, etc. The time refer in such sentence in future, present, or past, but it preferred to was in expressing supposition and desires. I wish he were here. I wish I knew his name. Supposing we lost the match, it is time we went home. इस काल का प्रयोग ऊपर दिए गए सब समूहों के साथ होता है। ऐसे वाक्यों में दिया गया समय वर्तमान या भविष्य का ही बोध कराता है। बाज की जगह वर को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कि वाक्य ए में ही के साथ वर का प्रयोग हुआ है। As if, as though can be followed by a past tense with a
with a present meaning when we talk about things which we know are not true. He talks as though he was the sarpanch, but he definitely not. He talks as though he was rich, but definitely he is definitely not. Note the use of past tense after as if as though expresses unreality. In a formal style, bar can be used instead of was in an unreal comparison. हम बर का यूज कर सकते हैं वाज की जगह. एज इफ एज दो पास्ट डेफिनेट का प्रयोग अवास्तविकता का बोध कराता है. एज इफ एज दो. As he talks as if he were rich, he behaved as if he were the manager. Past continuous. Auxiliary verb was a verb. इसे पढ़ा हमने. He talks as he were rich. He behaved as he were the manager. माने क्या है, ये ऐसे बात करता है ऐसे कोई रिश्ता, वो अमीर नहीं है. यहाँ पे मैं बात बिहेव कैसे करता है, मैनेजर की तरह करता था. तो मैंने ऐसे कैसा बिहेव करता था, मैनेजर की तरह. वो मैनेजर नहीं था ना, वो अमीर था. एज इफ आ गया, एज दो आ गया, तो मतलब ये आवश्यक है, वास्तवता इसमें है ही नहीं है. Past continuous. Verb form auxiliary verb was or were. Main verb ing form present participle. She was taking tea when I reached there. He was reading a book yesterday. It is used for an activity or action that was going on at some past date or time. जब भूतकाल में किसी समय पर कोई कार्य चल रहा था. The rain was falling and the cow were grazing. People were shooting slogans. It is also used to show a continuous action as a background for something more important or more dramatic. This new and more important action is expressed by the simple past tense. She lost her watch while she was sleeping. The players were playing when the storm came. माने it is also used to show a continuous action as a background for something more important or dramatic. This new and more important action is expressed by a simple past tense. इस पाल का प्रयोग हम ऐसे निरंतर चलने वाले कार्य के लिए करते हैं जो किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य की परिपुष्टि के रूप में होता है. महत्वपूर्ण कार्य का वर्णन पास्ट सिंपल में किया जाता है. वाक्य में घड़ी का खोना महत्वपूर्ण कार्य है और उसका प्रयोग पास्ट सिंपल में किया गया है. जैसे यहाँ देखें, She lost her watch while she was sleeping. उसने घड़ी खोई थी, माने घड़ी खो गई.
कब खोई थी? जब वो सो रहा था। तो इम्पोर्टेंस क्या है? घड़ी का खोना। तो ये सिंपल टेंस में हो गया और ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस में। In reported in the it is used in place of present continuous. He said, I am going to Jaipur today. He said that he was going to Jaipur that day. Adverbial clauses using when and while, at the time, etc. are found in this tense form. While he was crossing the road. Important क्या है? अब थर्ड है हमारा पास्ट परफेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब हैड मेन वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। व्हेन आई रीच्ड होम द मिस हैड ऑलरेडी गॉन। यूजेस इट इज used for an action begun and completed in the past before another action. The action which is completed first in the past perfect tense and other in the past simple tense. The action which is completed first in the past perfect, अगर पहले ख़त्म हो रहा है तो हो रहा है past perfect tense में आएगा and other one is past simple. The patient had died before the doctor arrived. Raman had taken his lunch before we reached. देखो पहले मर चुका है पेशेंट डॉक्टर के पहुंचने से पहले। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट में। रमन हैड टेकन हिज लंच बिफोर वी रीच्ड, हम पहुंचे थे उससे पहले रमन अपना लंच कर चुका था। इसका प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में किसी अन्य कार्य में पहले शुरू एवं समाप्त हुआ हो। वाक्य में ए में पहले रोगी मरा है फिर डॉक्टर पहुंचा है, जो कार्य दो में से एक पहले होता है फिर पास्ट परफेक्ट में है और जो बाद में होता है पास्ट सिंपल में व्यक्त किया जाता है। पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा और बाद में होगा वो पास्ट सिंपल में होगा। इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, पास्ट परफेक्ट पापा पहले पा से पहले पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। पा दो बार है या पा एक बार है। बाद वाला मैं समाप्त जहाँ पे समाप्त हो रहा है एस समाप्त एस सिंपल बाद में होगा, पास्ट सिंपल बाद में आएगा। to indicate the duration of time factor up to a given time in the past. By the time I retired from that college, I had taught there for 25 years. In conditional sentence, it indicates a condition or supposition not fulfilled in the past. शर्त वाले वाक्यों में इसका प्रयोग ऐसी शर्त के लिए किया जाता है जो भूतकाल में पूरी नहीं हुई हो। शर्त वाले वाक्यों में इसका प्रयोग ऐसी शर्त के लिए किया जाता है जो भूतकाल में पूरी नहीं हुई हो। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड। If you had come in time, you would have caught the train. तो शर्त वाले वाक्यों में इसका प्रयोग ऐसी शर्त के लिए किया जाता है जो भूतकाल में पूरी नहीं हुई हो। वाक्य ए में कठिन परिश्रम नहीं किया। यदि ये वाला इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड। इफ वाले उपवाक्य में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो दूसरे वाक्य में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब फ्रॉम ऑक्सिलरी वर्ब
had been. Main verb ing form present participle. When I entered the class, the teacher had already been speaking for 15 minutes. He had been living in Delhi for 10 years when I met him last year. Future tense, future indefinite, auxiliary verb. Shall with first person, with second and third person. Will with second and third person. Main verb first form, present tense verb. We shall meet again, pure future. You shall get your money, current future. It is used to state simple futurity, uncolored future. इसका प्रयोग सादा भविष्य के लिए होता है. I shall be 51 next year. The train will arrive at 2 p.m. साधारण शुद्ध भविष्य, प्योर फ्यूचर तथा रंजित भविष्य, कलर फ्यूचर में अंतर होता है. साधारण भविष्य केवल भविष्य में घटने वाली बात बताता है और रंजित भविष्य, कलर्ड फ्यूचर, विलिंगनेस, स्वीकृति, प्रॉमिस बाय द थ्रेड, धमकी, डिटर्मिनेशन, निश्चय जैसे भाव व्यक्त करता है. रंजित भविष्य बताने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ विल, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है. आई विल रिटर्न योर बुक, प्रॉमिस. यू शैल योर मनी, यू शैल हैव योर मनी, प्रॉमिस. It is also used in conditional sentence. If you work hard, you will pass. I shall go as soon as I am ready. We don't use shall or will in if clause and temporary clause. तो यहाँ मैं देखा था पहले पास्ट परफेक्ट में कि if वाले वाक्य में हेड पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है. if वाले वाक्य में पर इसमें इफ से शुरू वाले उपवाक्यों और समय का बोध करने वाले उपवाक्यों में सेल और विल का प्रयोग नहीं होता. प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है. फ्यूचर कंटिन्यूअस वर्ब फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब शैल विल प्लस बी. मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म पार्ट पार्टिसिपल. He will be playing football in the evening. My friend will be waiting for me at the cinema. आहा, अब इसकी यूजेज देख लेते हैं ना. इतना पढ़ा है तो. It is used for action that will remain in progress at some time in future. ऐसे कार्य के लिए जो भविष्य में किसी भी समय पर चल रहा होगा. I shall be enjoying myself in Simla in June next year. We shall be playing a hockey match at 4 p.m. tomorrow. It is used for future plans that have already been decided. ऐसी भावी योजनाओं कार्यक्रमों के लिए जो पहले से तय हों. Ramesh will be putting up with you and Rita with us. He will be marrying Raji next month. Going to as future form. Going to use for expressing futurity in both spoken and written English. Going to use for pure future. It is used when futurity depends on person, will or intention. With person, going to expresses a person, will or intention or certainty. Going to का प्रयोग
व्यक्ति के संदर्भ में बोलने वाले की इच्छा, इरादा और निश्चितता को व्यक्त करता है। गोइंग टू का प्रयोग व्यक्ति के संदर्भ में बोलने वाले की इच्छा, इरादा और निश्चितता को व्यक्त करता है। He is going to sell his car. इसका इरादा कार बेचने का है। He is going to give me a new book tomorrow. He is going to sell his car. He is going to finish it next week. He is going to finish it next week. आप पढ़ते हैं with things. Going to has the meaning of probability or inevitability in the mind of speaker. Going to का प्रयोग वस्तुओं के संदर्भ में संभावना अवश्य भाविता का व्यक्त करता है। जब बस इज गोइंग टू ओवरटर्न, बस उलटने वाली है, उलटने की संभावना पूरी है। देयर आर डार्क क्लाउड इन द स्काई, इट इज गोइंग टू रेन। आकाश में काले बादल हैं, वर्षा होने वाली है। इट इज गोइंग टू रेन। द बस इज गोइंग टू ओवरटर्न, बस है वो उलटने वाली है। इट इज गोइंग टू रेन बिकॉज आई कैन सी ए स्टॉर्म कमिंग अप, वर्षा होने वाली है क्योंकि मैं देख सकता हूँ स्टॉर्म को जो आ रहा है, तूफान। इट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, दिस बुक इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट देन आई एक्सपेक्टेड। In passive voice, with the use of going to, the intention and certainty of the agent is implied. पैसिव वॉइस में गोइंग टू का प्रयोग से कार्यकर्ता का इरादा, आशय, निश्चितता उसके कथन में निहित होती है। शी इज गोइंग टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, अगले महीने उसका विवाह होने वाला है, निश्चितता है। गोइंग टू के प्रयोग से कार्यकर्ता का इरादा या निश्चितता उसी कथन में निहित होती है। The trees are going to be cut down soon. इसकी हिंदी है, ये वृक्ष शीघ्र ही काटे जाने वाले हैं, काटे जाएंगे, काटे जाना निश्चित है। She is going to be married next month, मतलब उसका शादी होना अगले महीने निश्चित है, शादी हो जाएगी अगले मंथ लड़की की। This room is going to be cleaned, यह रूम साफ हो जाएगा। This tree are going to be cut down soon, यह पेड़ जल्दी ही काट दिए जाएंगे, ये निश्चित है। Shall will is used when futurity depend on external circumstances. He will sell his house if you ask him. He will finish it next week. Pure futurity, external circumstance, shall will का प्रयोग साधारण भविष्य, अनिश्चित भविष्य के लिए किया जाता है जब भविष्यता बाहरी परिस्थितियों पर आधारित या निर्भर होती है। We will sell his car if you ask him. उसका कार बेचना आपके कहने पर निर्भर करता है, ना कि उसकी इच्छा पर। तो ये है कि सेल विल का प्रयोग साधारण भविष्य जो अनिश्चित के लिए किया जाता है जब भविष्य बाहरी परिस्थितियों पर आधारित होती है। अब पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट वर्ब फॉर्म, ऑक्सिलरी वर्ब, शैल, विल प्लस हैव, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म आएगी, पार्ट पार्टिसिपल। आवर फ्रेंड विल हैव रीड,
Our friend will have arrived by 4 p.m. today. I shall have finished my book by tomorrow. Will के बाद have the third form. Shall के बाद have the third form. It is used for an action that will begin and be completed at some given time in future. This tense is usually associated with by and by the time. In 3 months, he will have written 2 books. The population of Jaipur will have crossed 60 lakh by 225. इसका प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो वर्तमान या भविष्य में शुरू होकर भविष्य में किसी दिए गए समय तक पूरा हो सकेगा। इसमें बाया टाइम का प्रयोग समय बताने के लिए होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी वर्ब फॉर्म होती है ऑक्सिलरी वर्ब शैल विल प्लस हैव बीन, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। By the end of this year, I shall have been teaching in this college for 19 years. Man will have been living in space in a few hundred years. It is used to express the duration of an action up to a point of particular time in the future. इसका प्रयोग ऐसे कार्य वर्णन के लिए किया जाता है जो भूत भविष्य वर्तमान शुरू होकर भविष्य में समय की एक अवधि पर असंतः पूर्ण हो जाता है और आगे भी जारी रहता है। जैसे He will have been waiting for his wife for 4 hours at 3 o'clock tomorrow. अब देखते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। The sequence of tenses is the principle in accordance with the tense of the verb is subordinate clause follows the tense of verb in principal clause. कार्यक्रम में सिद्धांत है इसके अनुसार आश्रित उपवाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्रिया मुख्य वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया के अनुसार आती है। स्टडीज द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रिंसिपल क्लॉज ही सेड, डिपेंडेंट क्लॉज दैट ही वाज लेट। कार्यक्रम वह सिद्धांत है जिसके अनुसार आश्रित उपवाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, में क्रिया मुख्य उपवाक्य की क्रिया के अनुसार आती है। इसके अनुसार इसकी क्रिया आएगी। ही वर्क हार्ड सो डैट ही माइट पास। I will let you know when I shall start. He succeeded because he worked hard. देखो पास्ट तो यहाँ पास्ट क्रिया, या फ्यूचर ही क्रिया तो यहाँ फ्यूचर क्रिया, यहाँ पास्ट की क्रिया तो यहाँ पास्ट की क्रिया, यहाँ पास्ट तो यहाँ ही पास्ट की क्रिया आई है। तो डिपेंड करती है डिपेंडेंट क्लॉज की क्रिया सबऑर्डिनेट की क्रिया डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पर। From the above example, we learn that there are 2 main rules about the sequence of tenses.
and also special rules center around these two rules. First, if the verb in the principal clause is in the present or future tense, the verb in the dependent clause may be in any tense according to the sense. अब देखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में और डिपेंडेंट एनी टेंस में हो सकता है. ही से दैट ही सॉ अ बर्ड. He says or will say that he has seen a bird. He says or will say that he will see a bird. इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपका प्रिंसिपल क्लॉज है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आपकी जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो किसी टेंस में हो सकती है. तो फ्यूचर में है, आपकी पास्ट में है, आपकी प्रेजेंट परफेक्ट में है. अब देखते हैं रूल 2. इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस, द वर्ब इन द डिपेंडेंट क्लॉज मस्ट आल्सो बी इन द पास्ट टेंस. यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो डिपेंडेंट क्लॉज पास्ट टेंस में ही होगी. देखते हैं एग्जांपल. प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में तो डिपेंडेंट क्लॉज भी पास्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस में ही होगी. आई सेड दैट आई वुड हेल्प हिम. he was honest although he was poor. We never understood why he did that. He remained silent when he heard the news. He walked so far that he tired himself. ये पास्ट सर पास्ट की पास्ट में आ रही है क्रिया. Principal clause, dependent clause, वही सेम चला. He asked me whether I had seen Prakash. Past. Raman was informed that he had asked. Past. Exception. Past tense in the principal clause is followed by present tense in the dependent clause. If dependent clause states a universal truth, यह सार्वजनिक सत्य है तो वो आपको प्रेजेंट टेंस में होगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज. इसका फर्क नहीं पड़ेगा प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया का. उसे देखते हैं हम. He said that sunrise in the east. Newton discovered that the force of gravitation makes apples fall. The teacher said honesty is the best policy. I was glad to hear that India is progressing. Galileo maintained that Earth moves. A past tense in the principal clause is followed by any tense in the adverbial clause beginning with then. A past tense in the principal clause is followed by any tense in the adverbial clause begin with then, as he liked you more than he likes me. यदि प्रिंसिपल क्लॉज he liked you more than I will like you. He liked you more than he liked me. यदि then के साथ यदि कि ये आ रहा है एडवर्बियल क्लॉज आ रही है, यदि हो शुरू हो रही है
कि हमारा जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसमें कौन सी क्रिया आ जाएगी। देन के साथ हमारा शुरू हो रहा है टेंस सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज का, तो इसमें कोई सी क्रिया आ सकती है, विल भी आ सकती है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कुछ से आ सकती है, भले ही प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट की क्रिया हो। थर्ड, ए पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज मे बी फॉलोड बाय एनी टेंस इन द एडजेक्टिव क्लॉज। ए पास्ट टेंस in the principal clause may be followed by any tense in the adjective clause, as I visited the place where Gandhiji was born. I visited the place where Ramesh lives. I saw the house where he will live. Expression 4, less that not is always followed by should in the dependent clause. Work hard lest you should fall. He is going lest he should miss the train. He went lest he should be arrested. लेस्ट आएगा तो शुड अपने आप आ जाएगा तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज में। एक्सप्रेशन 5, इफ ए डिपेंडेंट क्लॉज डिनोट्स पर्पज प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज फॉलोड बाय प्रेजेंट टेंस इन द डिपेंडेंट क्लॉज, बी डेट बी मे लाइव, ही विल वर्क हार्ड सो डेट ही मे succeed. थैंक यू फॉर डैट। आप पढ़ेंगे आगे हम क्वेश्चन आंसर जो आप थर्ड ग्रेड में आए हैं उनको पढ़ेंगे, पहले उनको देखेंगे, फिर एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करेंगे हम, उसके बाद फिर आपका सेंटेंस शुरू करेंगे कंडीशनल सेंटेंस शर्त वाले वाक्य। धन्यवाद आपका देखने के लिए। यहाँ तक पढ़ाई करें, करते रहें, आगे बढ़ते रहें, लक्ष्य नौकरी को पाकर दम लें। मैं आपका वैकुंतल पूरी किताब में ख़त्म करवाऊँगा आपका। धन्यवाद आपका देखने के लिए।